Good morning, class third. How are you all? I hope you all are fine at your home. So, children, welcome back to your online classes. And as we know that we are revising the chapter. So, the children in our previous class we revised the chapter number 12 preposition, and now today we will revise the two chapters. Chapter number 13 interjections and chapter number 14 punctuations. So, first we will talk about the interjections. So, all these words: hello Suman, how are you? Alas, we have failed. Hurrah, we have won. Hush, someone is coming. Ouch, there is a pain in my neck. Wow, what a beautiful scene. Hey, what are you doing here? Oh, what a bright day. Ah, you are here too. Bravo, well done, boys. So, words in bold in the above sentence express the sudden and strong feeling are called interjections. तो जो वर्ड्स हमारे साथ में हमारे फीलिंग को, हमारे शब्दों के साथ हमारी फीलिंग को भी एक्सप्रेस कहते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शंस कहते हैं. एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग. Okay, now here, hello is used to attract attention. alas express grief or sadness, यानी कि alas जो hello होता है वो क्या करता है? attract the attention. किसी की attention पाने के लिए जब हम क्या बोलते हैं? word hello. and alas express the grief sadness, यानी कि बहुत ज़्यादा दुख की जब बात होती है तब हम हमारा कौन सा expression शो करता है, कौन सा interjection हम यूज़ करते हैं? alas. hurrah is express the pleasure and happiness. hush is used to tell somebody to be quiet. ouch is express sudden pain. wow is used to express surprise or admiration. hey is used to express interest, surprising or anger. oh expresses surprise or pleasure, sometimes disappointment also. so n expresses surprise or pleasure, express surprise or pleasure. bravo is used to express approval. so here these 10 interjections are here. okay, so an interjection is a word that express a strong feeling. तो यानी कि interjections क्या हुए? जो कि हमारी strong feeling को express कहते हैं, ऐसे words को हमें interjections कहते हैं. now here punctuation. so punctuation, we use stop और mark of punctuation make a sentence और sentence is clear. यानी कि punctuation mark को यूज़ करने के बाद हमारा कोई भी sentence या कोई भी passage अगर हम लिखते हैं उसको हम with punctuate लिखेंगे, अच्छे से उसको punctuate करके लिखेंगे, यानी उसमें जो full stop, comma, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, इनका यूज़ करने के बाद जो हमारा सेंटेंस जब हम उसको रीड करते हैं तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल ही क्लियर हमको समझ में आता है. द मेन मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन आर फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा. सो फुल स्टॉप हम कब और कहाँ यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज एट द एंड ऑफ द पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस. जो हमारे जो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनके एंड में यानी कि जब हम किसी भी सेंटेंस का एंड करते हैं तो वहाँ पर हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं. वी आर फ्रेंड्स, इट इज़ नॉट रेनिंग, प्लीज़ कम हेयर. Now the B, it is used for initial observations, यानी कि just like a VK Sharma, MP the UNO the UK. तो यहाँ पर भी हम full stop का यूज़ करते हैं. Now the question mark, it is placed at the end of the interrogative sentence. ये हमारे जो interrogative sentence होते हैं यानी कि प्रश्नवाचक, जहाँ पर हम क्वेश्चन पूछते हैं वहाँ पर हम एंड में जो है क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं. Was he at home? When did you come? इसी तरीके से हमारा है थर्ड, मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन. इट इज़ प्लेस एट द एंड ऑफ द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और आफ्टर द इंटरजेक्शन. जो व्हाट अ नाइस बॉय ही इज़, हाउ लकी आई एम, हुर्रा वी हैव वॉन, हुर्रा वी हैव वॉन. सो हियर एक्सक्लेमेशन मार्क का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? जो हमारे को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, जो जहाँ पर हम अपने एक्सप्रेशंस को भी शो करते हैं, वहाँ पर हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं. आफ्टर द इंटरजेक्शंस जो होते हैं, जो कि अभी अपने प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा इंटरजेक्शन, तो इंटरजेक्शंस के आफ्टर भी हम
एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं। नाउ द नंबर 4 इज कॉमा। इट इज़ यूज टू सेपरेट मोर देन 2 नाउन्स, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब एक्सेट्रा। यानी कि सेपरेट करने के लिए, जहाँ पर किसी कई सेंटेंस में हम कई सारे नाउन्स जो हैं साथ में यूज़ करते हैं, तो उनको सेपरेट करने के लिए नाउन या प्रोनाउन या किसी वर्ब को सेपरेट करने के लिए सेंटेंस में हम कॉमास का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिनेश, विपुल, करण एंड वीना वेंट टुगेदर। सो हियर मोर देन 1 नाउन, यहाँ पर एक से ज़्यादा नाउन का यूज़ हुआ है और जिसको हमने कॉमा के थ्रू उसको सेपरेट किया है। यू, ही, शी एंड आई आर good friends, are all good friends. So here pronoun, we have to use comma to separate the pronoun. try again, verbs, यहाँ पर हमने वर्ब को सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ किया। सुनीता इज जेंटल, काइंड एंड हेल्पफुल। एडजेक्टिव्स, ऑल दीज क्वालिटीज आर इन द सुनीता। सो हेयर द क्वालिटीज ऑफ सुनीता वी सेपरेट इन द हेल्प ऑफ कॉमा। वी रोट क्लियरली, नीटली, करेक्टली। एडवर्ब्स, सो यहाँ पर हमने एडवर्ब्स को सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ किया है। टू सेपरेट द नाउन्स ऑफ एड्रेस, यानी कि किसी भी जब नाउन को स्पेशली उसके बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर भी उसको नाउन को बाकी अदर सेंटेंस से सेपरेट करने के लिए भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं। रमेश, कम हियर। बॉयज़, यू आर वेरी ब्रेव। नाउ टू सेपरेट द वर्ड्स इन अपोजिशंस, जवाहरलाल नेहरू, इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, was a good writer. So here we separate some opposition. यहाँ पर हमने कुछ sentences को आपस में क्या किया, separate किया है। Miss Sneh, our English teacher, was not present. The separate parts of the sentence. If you are hard working, you will pass. The sun is planet, but the moon is not. Now here inverted commas. There is a use of a mark of एग्जैक्ट वर्ड यूज बाय द स्पीकर, यानी कि स्पीकर के द्वारा कहे गए जो उसके एग्जैक्ट शब्द हैं उनको हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है। जैसे सुषमा शेड, तो यहाँ ने ये गुड इज, गॉड इज ग्रेट, तो ये किसके वर्ड्स हैं? एग्जैक्ट वर्ड जो सुषमा ने कहे ये वो वर्ड हैं, तो इसलिए ये कोटेशन हो गया, एक किसी के द्वारा कहा गया, तो इसको इन्वर्टेड कॉमास में हम लिखेंगे। द अर्थ इज नॉट फ्लैट, सेड द टीचर। सो दिस इज द कोटेशन ऑफ अ टीचर, यानी टीचर के द्वारा कहे गए एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, ये शब्द हैं। नाउ द कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर इज यूज टू बीइंग एवरी न्यू सेंटेंस। जब भी हम कोई नए सेंटेंस की शुरू करते हैं तो उसकी शुरुआत हम कैपिटल लेटर से करते हैं। प्रॉपर नाउन, जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं यानी पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल, सबको हम कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं। इट डजेंट मैटर वेयर इट्स प्लेस इन द सेंटेंस, ये मैटर नहीं करता है कि वो सेंटेंस में कहाँ पे प्लेस करते हैं। जस्ट लाइक प्रॉपर नाउन, शी लिव्स इन लंडन, सो लंडन इज द लास्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस, बट बिकॉज इट इज़ अ पर्टिकुलर नेम ऑफ अ सिटी, सो दैट्स वाई वी यूज कैपिटल लेटर इन लंडन। सुमन एंड राकेश आर फ्रेंड्स, तो सुमन प्रॉपर नाउन भी है और साथ ही साथ हमारा पहला वर्ड भी है सेंटेंस का। एंड राकेश वी और सॉरी रेखा, रेखा इज ऑल्सो द पर्टिकुलर नेम ऑफ अ गर्ल, सो वी राइट बोथ इन द कैपिटल लेटर। द फर्स्ट वर्ड विद इन द इन्वर्टेड कॉमास, सी सेड, तो यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो हमारा फर्स्ट वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। ही सेड टू अस, डोंट शाउट। द प्रोनाउन आई एंड ही एंड आई वेंट टुगेदर, जो प्रोनाउन आई है, जब हम आई को एज अ प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो उसको भी हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। सो द चिल्ड्रन, नाउ इन द बेस ऑफ यू हैव अ सम वर्क, सो यू हैव टू डू दिस वर्क इन your English grammar notebook, or you can do this work in your English revision notebook. So this is first chapter number 13, interjections. So here you have to fill the interjections and here the punctuate. So you have to punctuate and use the capital letter if necessary. So आपको यहाँ पर इनको आपको punctuate करके इनको लिखना है. Okay, so the children, that's all of for today, and the other work we will do in the next class. Till then, bye, take care.